وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز آئی، کون ہے؟ امامہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑی ہے مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ ابھی تو 10 ہی بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں؟ اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے، پھر تم کوئی ٹیبلٹ کیوں نہیں لے لیتی؟ میں لے چکی ہوں۔ اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر لیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر اس نے تکیے سے منہ چھپا لیا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی میں میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں، اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بیہودہ شو کے سامنے، طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھ کر اندر جاؤ اور پڑھو، طیبہ نے اسے کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپر میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی اسٹڈیز کی تو تم اس وقت یہاں بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائیڈ، اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی تھی میں کر چکا ہوں تو پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہیں، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا، طیبہ نے ایک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات کو اب سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ سے مت بولا کریں۔ ایگزامز ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو، اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے سے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے ماری۔ پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ فلومینا فرانسس نے ہاتھ میں پکڑا اپنا پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے انہیں آخری نظر ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکت سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا فرانسس کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظر ہال میں تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہری۔ 25 اسٹوڈنٹس میں سے اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پر مار رہا تھا اور اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا فرانسس کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سال کے کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے MCQ پر
बनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद इसे वह पेपर इनसे ले लेना था। 9:10 पर इन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होता हुआ देखा। इसके खड़े होते हुए हॉल में इसके पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट सर उठाकर इसे देखा। वह पेपर हाथ में लिए फ्लोमिना फ्रांसिस की तरफ जा रहा था। फ्लोमिना फ्रांसिस के लिए यह सीन भी नया नहीं था, वह पहले भी यही कुछ देखते आई थीं। 30 मिनट में हल किए जाने वाला पेपर वह 8 मिनट में हल कर इनके पास आ खड़ा हुआ। पेपर को दोबारा देख लो, इन्होंने ये जुमला इससे नहीं कहा। वह जानती थी कि इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ। वह अगर इसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो हमेशा की तरह वह पेपर ले जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता और बाजू को सीने पर लपेट कर बैठ जाता। इन्हें याद नहीं था कभी इसने इनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वह यह तस्लीम करती थी कि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। इन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? इन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वह इनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। आपकी यह ख्वाहिश इस सूरत में पूरी हो सकती है अगर मैं यह पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम यह पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वह हंसा और वापस मुड़ गया। फ्लोमिना फ्रांसिस ने एक नज़र इसके पेपर की सफ़ाहत से उलट पुलट कर देखा। एक सरसरी सी नज़र इन्हें यह बताने के लिए काफ़ी थी कि वह इस पेपर में कितने नंबर गंवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लपेटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। यह क्या है मामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ लेना था तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफ़ा देना है? वह लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है, इसके लिए ख़रीद कर रख रही हूँ। कुरियर सर्विस के ज़रिए इसे भिजवा दूँगी क्योंकि मुझे तो अभी यहीं रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो यह पैकेट, मैं वसीम को दे दूँगी, वह भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊँगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई है। सलमा को लगा जैसे वह एकदम घबरा गई। इन्हें हैरानी हुई, क्यों ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले इमामा की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, इन्हें और इनके शौहर हाशिम को। वह तब अपनी बेटी के बारे में फ़िक्रमंद थे और हाशिम इनसे ज़्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वह दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, ख़ास तौर पर अज़जत से इसकी निस्बत तय करके। वह जानते थे कि इमामा अज़जत को पसंद करती है और सिर्फ वही नहीं, अज़जत को कोई भी पसंद कर सकता था। वह हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वह यह भी जानते थे कि वह अज़जत से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। अज़जत और इसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा इन्हें लगता जैसे वह वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही थी। वह पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वह स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं थी, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहाँ होता है इसके पास। सलमा हमेशा ख़ुद को तसल्ली दे लेती। वह इनके सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वह शादी कर चुकी थीं। एक बेटे की भी शादी कर चुकी थीं, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है यह संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। इन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए इतना ही अच्छा है। सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए इमामा से नज़रें हटा ली। वह छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वह यहाँ रहती इनकी नज़रें इस पर इसी तरह मरकूज़ रहती। पता नहीं यह साजिद कहाँ रह गया, जो भी काम इसके ज़िम्मे लगाऊं बस भूल ही जाऊं। इन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख़याल आया, जिसके पीछे वह लॉन्ज में आई थीं। बड़बड़ाते हुए वह लॉन्ज से निकल गईं। यह न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों का वह मुश्तमल 14-15 साल के लड़के का वह ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ़ था। इनमें से चंद अपने माथे पर चमकदार बैंडेज बांधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगाम दर्ज थे। वह लोग 1 घंटे पहले पॉश इलाके के एक बड़ी सी मार्केट में मौजूद थे और वह वहाँ मुख्तलिफ लड़कियों पर आवाज़ें कसते रहे। अपनी बाइक्स पर सवार मुख्तलिफ सड़कों पर चक्कर लगा रहे थे। इनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे, जिन्हें वह वक्तन फ़वक्तन चला रहे थे।
11:15 को वह जिम खाना के बाहर थे, जहां जिम खाना के बाहर की पार्किंग लॉट गाड़ियों से भरी हुई थी। यह गाड़ी इन लोगों की थी जो जिम खाना में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों के पास भी इस पार्टी की दावत कार्ड मौजूद थे, क्योंकि इनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिम खाना के मेंबर थे। वह लड़के अंदर पहुंचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों के बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और इसके बाद बाहर लॉन में एक आतिशबाजी का एक मुजाहरा के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना था, और इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहां रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसके एहतमाम में नए साल की इस तकरीब के लिए जिम खाना का इंतज़ामिया ख़ास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होने पर वहाँ एक तूफ़ानी बदतमीज़ी का आगाज़ होता था और वहाँ मौजूद लोग इसी तूफ़ानी बदतमीज़ी के लिए वहाँ आए थे। 15 साला वह लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ वहाँ आया था और इसके बाद डांस फ्लोर पर रॉक बीट पर डांस कर रहा था। डांस में इसकी महारत काबिले दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड जाने पर लाइट्स ऑफ हो गई और ठीक 12 बजे लाइट एकदम दोबारा ऑन कर दी गई। अंधेरे के बाद सेकंड गिनने वालों की आवाज़ अब शोर और खुशी के कहकहों और चीखों में बदल गई थी। चंद सेकंड पहले थम जाने वाला म्यूज़िक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वह लड़का अब अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। इन्हीं लड़कों के साथ बियर का कैन पकड़े वह वहां मौजूद था और गाड़ी की छत पर चढ़ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट के जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी ताकत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी के विंडो स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी का विंडो स्क्रीन चूर चूर हो गई और वह लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ बियर का कैन पीता रहा। वह पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वह मुश्किल ट्रिक थी जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लॉन्ज के सोफ़े में से एक सोफ़े पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था, मगर वक्तन फ़वक्तन नज़र उठाकर वह स्क्रीन को भी देख रहा था, जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ था। ठीक आधे घंटे के बाद इसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जम्हाई रोकी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रखकर दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वह कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांद ज़ाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सलार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ, मगर स्कोर करने में बड़ी ही मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। इसने सोफ़े से उठकर रिमोट कंट्रोल को हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सलार इसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रिक इसे बहुत मुश्किल लग रहा था, सलार के सामने वह एक बचकाना सी चीज़ महसूस हो रही थी। 1 मिनट बाद वह जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था, स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नज़रें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सलार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते हुए और फिर ट्रैक से उतरकर एक धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सलार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वह जान गया था। रिमोट अब सलार के हाथ के बजाय मेज़ पर पड़ा हुआ था और अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर इसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सलार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लॉन से बाहर निकल गया। कामरान होठ भींचे इस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के एक कोने पर जगमगा रहे थे। कुछ न समझ आने वाले अंदाज में इसने बरौनी दरवाजे को देखा जिससे वह गायब हुआ था।